Very good morning, children. Welcome to the classroom. So, children, I just expect from you all that you are watching the videos and writing the notes properly and doing your work with an honesty and giving your 100%. Please, children, keep your spirit on and just work very hard. Okay, so basically, so many topics I have discussed with you, children. There are so many things I have discussed with you. So, the topic which I am going to discuss with you today is, so children, we are studying about the personality chapter. So, the topic which I have chosen to discuss with you is the assessment of personality. Assessment of personality. This is the topic. See, personality assessment की बात कर रहे हैं हम लोग. We almost know about what is personality. I think there is no need to discuss over that one again. So I had discussed with you that you all have knows about the personality. आप सभी को मालूम है कि पर्सनालिटी क्या होती है. पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे करते हैं? देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच यू कैन डू द असेसमेंट ऑफ द पर्सन्स पर्सनालिटी. असेसमेंट मीन्स बेसिकली डूइंग द मेजरमेंट. आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है पर्सन की पर्सनालिटी का. So in order to do the measurement of the person's personality, the three main techniques are found to be important. The first one is the self-report technique. Second is the projective technique. The third is the behavioral analysis. So three techniques are there which are used to do the assessment of the person's personality. Like for example, अगर हमें किसी के personality को measure करना है, if we want to know about someone's personality, we can use three techniques. We can use self-report technique also. We can use projective technique also, and we can use behavioral analysis technique also. Okay, self-report, projective and behavioral analysis. Behavioral analysis करके भी हम लोग बहुत कुछ we get to know so many things about the person's personality. उसके behavior की analysis करने पे. So ये तीन चीजें हैं, self-report, projective और behavioral analysis. One by one we will discuss about these things. So first of all, self-report. I am going to rub it. Please note it down in your copy. Okay. So first is the self-report technique. Self-report technique, as it indicated from the name, self-report, यानी अपनी ही रिपोर्ट खुद से देना. Self-report, अपने ही बारे में खुद बताना. तो self-report is a technique where the person give the factual information about himself or herself. अपने ही बारे में वो खुद बताता है और facts बताता है. That is the self-report technique. It is a technique which is given by the Allport. Allport ने बेटा ये टेक्निक लेके आए थे. Allport is a name of psychologist Gordon Allport. इन्होंने ही ये टेक्निक की बात कही थी कि इस टेक्निक का यूज करके हम लोग किसी के पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं. ये जितने भी सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक होते हैं, पर्सन खुद अपने बारे में बताता है. तो ऑब्वियसली कुछ मेरिट्स हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. अभी हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज एंड डीमेरिट ऑफ दिस टेक्निक. फाइन. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट most of in this kind of technique we use the questionnaires होते हैं and some questions were written, some items were written over there
It may be in the form of rating scale or may be required the respondent to respond in a true or false or yes or no. तो इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, स्कोरिंग करते हैं और रिजल्ट ड्रॉ आउट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो क्वेश्चनर के फॉर्म में रहता है, तो सेट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट को टिक करना पड़ता है और अपने बारे में वो बताता जाता है. फिर उसकी एनालिसिस करके आफ्टर डूइंग द स्कोरिंग एंड एनालिसिस वी गेट टू नो द पर्सन्स पर्सनैलिटी. इन दिस टेक्निक द थ्री मेन टेक्निक्स की इसमें तीन मेन टेक्निक आती है. सबसे पहला आता है फर्स्ट MMPI. MMPI is one of the self-report technique. MMPI full form is Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Minnesota Multiphasic Personality Inventory. ठीक है. मिनेसोटा, इसका नाम मिनेसोटा इसलिए बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ द प्लेस. ये प्लेस का नाम है और इसी प्लेस के नाम पे इसका नाम रखा गया, मिनेसोटा मल्टीफेजेड पर्सनालिटी इन्वेंट्री. इट इज एन इन्वेंट्री. यू नो, यू शुड नो चिल्ड्रन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, इन्वेंट्री, ओके, और बैटरी. देखो टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट बेसिकली मेजर ओनली वन ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक. एक ही ट्रेट और एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मेजर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट. तो ये टेस्ट जो है सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे. सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट को मेजर करेंगे. बट जो इन्वेंट्रीज होती हैं ये बहुत सारे क्राइटेरिया को मेजर करता है. तो MMPI एक इन्वेंट्री है, तो ये सिर्फ एक क्राइटेरिया को मेजर नहीं करेगा. इट मेजर सो मेनी क्राइटेरिया एंड सो मेनी थिंग. फाइन. सो आई अंडरस्टैंड दैट टेस्ट, इन्वेंट्री और बैटरी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. फुल फॉर्म यू अंडरस्टैंड, मिनेसोटा मल्टीफेजेड पर्सनालिटी इन्वेंट्री. Who has given it? Hathaway and McKinley. Hathaway, it is the name of a psychologist. Hathaway and McKinley. इन्होंने दिया है. Please note it down these points. So I hope children you all have noted it down. Hathaway and McKinley has given the MMPI. Okay, and this is the first point. Second, it has 10 subscales. इसमें 10 subscales हैं. ठीक है. 154 स्टेटमेंट होते हैं इसमें, 154 आइटम्स होते हैं. MMPI एक सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है जिसमें क्वेश्चनर्स होते हैं, अराउंड 154 आइटम्स होते हैं, 10 सब स्केल्स होते हैं. इट मेजर सो मेनी 10 एरियाज को मेजर करता है MMPI. Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Hathaway and McKinley. Okay, like what are the areas like depression, hypochondriasis, psychosis, okay, conversion, dissociative. तो इस तरीके कुछ चीज़ों को, पर्सनालिटी को ये मेजर करता है. आई थिंक नॉट 154, कुछ 567 आइटम्स होते हैं. आप इसको नहीं लिखेंगे, आइटम्स आप छोड़े, बट इट इज श्योर दैट इट हैज अ 10 सब स्केल. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद MMPI के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है EPQ. EPQ means the full form of EPQ is Eyzen Personality Questionnaire. EPQ नाम से पता चल रहा है Eyzen, so it is given by the Eyzen. Eyzen Personality
questionnaire. Okay, Eisen personality questionnaire, and it is given by H.J. Eisen. Is the name of a psychologist. इनकी ट्रेड थ्योरी भी है, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. सो H.J. Eisen ने दिया है Eisen EPQ. ये 3 डायमेंशंस को मेजर करता है. फर्स्ट इसका होता है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन. ये मेजर करता है कि पर्सन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन. फाइन. सेकेंड ये मेजर करता है न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म यानी इमोशनल अनस्टेबिलिटी वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. Emotional stability. I hope it is visible to you all clearly. Okay, some way it is lying down, but it is visible. Introversion versus extroversion, neuroticism versus emotional stability. मैंने बोला 3 dimensions को measure कर रहा है. And the third dimension is psychoticism. Psychoticism. Psychoticism means unsociable versus sociability. So ये 3 डायमेंशन को मेजर कर रहा है EPQ. ये डायमेंशन से हमें पता चल जाता है कि पर्सन इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, इमोशनली अनस्टेबल है कि स्टेबल है, अनसोशिएबल है कि सोशिएबल है, न्यूरोटिक है कि साइकोटिक है. तो वी गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स चिल्ड्रन. सो दिस इज वन ऑफ द सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक. सो 2 वी हैव डिस्कस MMPI and EPQ. The third self-report technique is Sistine Peer. I just hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे साथ साथ. अभी हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें C पॉइंट है Sistine Peer. Peer means personality factor. Sistine personality factor. Yeah, children, Sistine Peer is also one of the great tool for the assessment of the person's personality. It measures the Sistine aspect of person's personality. Sistine factors को ये measure करता है, and it is given by the Cattell. Cattell ने इसे दिया था, ठीक है. Cattell की थ्योरी भी है जिन्होंने डिस्कस किया, और उसमें भी बताया कि Sistine पर्सनालिटी फैक्टर का यूज होता था, क्योंकि ही यूज टू द टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस. मतलब वो फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज करते थे इन ऑर्डर टू नो द समवन्स ट्रेट. सो फ्रॉम दैट वन ही डेवलप वन ऑफ द टेक्निक ऑल्सो, अ सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक विच इज अ Sistine Peer. Although it is a very lengthy technique to do, and it is somewhere typical also, but when you understand it and with the repeated process, you will be able to understand it clearly. Self-report technique, here we have completed the self-report technique. So basically self-report technique is divided into 3 parts. MMPI, EPQ and Sistine Peer. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. प्रोजेक्टिव टेक्निक. So first thing we have discussed self-report. Now second part is the projective. It is such an amazing technique for the assessment of person's personality. बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है प्रोजेक्टिव टेक्निक. प्रोजेक्शन हो रहा है. प्रोजेक्टिव टेक्निक वो टेक्निक, इट इज, सबसे पहले आपको ये जानने वाली बात है कि इट इज एन इनडायरेक्ट टेक्निक फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सन्स पर्सनालिटी. ये जो टेक्निक है ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है. लाइक सेल्फ रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट टेक्निक है. The respondent or the subject who is aware about these tests,
कि उस वो क्या है एक्चुअली सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक डायरेक्ट टेक्निक है। डायरेक्ट टेक्निक का मतलब कि जो जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं या जिसकी पर्सनालिटी को हम एसेस कर रहे हैं उसको द पर्सन इज वेरी मच अवेयर दैट माई पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी एसेस। उसको पता होता है कि मेरी पर्सनैलिटी मेजर हो रही है। पर प्रोजेक्टेड टेक्निक क्या होता है? प्रोजेक्टेड टेक्निक इज एन इनडायरेक्ट टेक्निक, यानी द पर्सन इज नॉट अवेयर कि ओके द अदर पर्सन the person who is in front of me is going to assess my personality. So it is an indirect technique. It something you can understand it is make the person in a state of unawareness, but उसमें complete awareness होती है. So I hope children you understand about that projective technique, how it is an indirect technique. Because sometimes it is come in your examination, so you will be able to answer कि why it is indirect technique. Now projective technique is a technique, first of all it is an indirect technique. Second, it is a technique where the stimulus is unstructured. Stimulus जो होता है unstructured होता है. Stimulus is unstructured. Means in comparison to the self-report technique where the stimulus is very structured. सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक जो थी उसमें स्टिमुलस जो था वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड था. इट हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चनर, उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इंस्ट्रक्शंस वर गिवन दैट यू हैव टू रेस्पॉन्ड इन ट्रू और फॉल्स और यस और नो और ऑन द रेटिंग स्केल 1 2 3 4 5. बट हियर इन द प्रोजेक्टिव टेक्निक स्टिमुलस इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड. लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द रोशास में क्या है, एन इंक ड्रॉप वाज ऑन द पेपर and the subject were asked what you see in the picture. So how you can say that the stimulus is structured? It is unstructured, unclear. Okay, clear नहीं होता, structured नहीं होता. Then project यही इसकी खूबी है. That is why because of being an indirect technique, because of being not structured, the projected technique is a technique which help to reveal the person's unconscious thoughts and feeling. जो चीज़ें उसने unconscious में रखी है वो consciousness में आ जाती हैं. Okay, so used to bring unconscious material into consciousness. Used to bring unconscious material into consciousness. जो चीजें unconscious में हैं उसको consciousness में ले आता है. कौन? Projected technique. Fine? Okay. Then what are the other characteristics? The main important is that, but it has some disadvantages also. अभी तक तो हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे थे. डिसएडवांटेज ये होता है लाइक इसकी स्टोरिंग और इंटरप्रिटेशन क्वाइट लेंदी होती है. स्टोरिंग इंटरप्रिटेशन इसका करना थोड़ा मुश्किल होता है और इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दोज हु आर डूइंग दैट पर्सन शुड बी प्रोफेशनली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस. उसका एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है. तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं. ठीक है. एसएससी जो एसेस कर रहा है शुड बी एक्सपर्ट, should be expert, trained and experience. उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन इज क्वाइट लेंथी. स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन is lengthy. I
hope children these points will help you to make your notes. Okay, I just hope you all have written it down with me and it is clear to you all. So ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के। प्रोजेक्टिव टेक्निक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। कितने तरीके के प्रोजेक्टिव टेक्निक होते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज वेरी फेमस इज Rorschach. Rorschach's ink blot test. This is the first. Second, thematic apperception test. Third, Rosen with picture frustration study. Here PF is written, which full form is picture frustration. Note it down, picture frustration. D, sentence completion. Sentence completion test. Next, draw a person test. Draw a person. Somewhere you will find out draw a man. Okay, कई कई जगहों पे draw a man लिखा होता है. So these are some of the projective techniques. Rorschach's ink blot test, thematic apperception test, Rosen-Wind picture frustration study and sentence completion test, draw a person test. बहुत डिटेल में तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें थर्ड टेक्निक भी डिस्कस करनी है. So this is the second criteria. The third criteria we have to discuss. तो सबसे पहले है Rorschach's ink blot test. Rorschach's ink blot test नाम से पता चल रहा होगा, एक तो Rorschach वर्ड है, ink blot है, तो क्यों दिया है? Rorschach is the name of a psychologist whose name is Hermann Rorschach. इनके नाम पे ही बना है और इन्होंने ink blot का यूज किया था, इसलिए इसे ink blot test कहते हैं. What he has done, he has taken a piece of paper and randomly he drop a ink and then fold the paper into half. As he opened the paper, whatever the image drawn on the paper, he showed that image to the person on whose personality is going to be assessed, and the person will have to tell what they will see in this picture. So ये करते थे वे लोग. Rorschach's ink blot test में 10 cards होते हैं. Okay, 5 of them are in black and white. 4 of them are in red in color and 2 of them are in pastel color. So इस तरीके से कुछ divisions होते हैं. 5x10 का size होता है इन cards का. Okay, fine. Now इसमें 2 stages आते हैं, performance proper and inquiry. परफॉर्मेंस प्रॉपर में तो हम सब्जेक्ट से पूछते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर सीन इन दिस पिक्चर. ओके, बट इंक्वायरी में वी गो इनटू द डिटेल. आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, वी गो इनटू द माइन्यूट डिटेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द Rorschach. Second come the thematic perception test. Here the word you can see children, thematic is written. Thematic is made from theme. Theme means story. तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, स्टोरी होती है. ओके, अच्छा मैं एक और बात बताना चाहती हूँ. देखा होगा जैसे आपने क्या भी पढ़ा कि कार्ड्स होते हैं और सब्जेक्ट से पूछते हैं आपको इसमें क्या दिख रहा है.
तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट इज अननोन कि मेरी पर्सनालिटी एसेस हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट टेक्निक हो गया, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। तो सब्जेक्ट बताता है मुझे बटरफ्लाई दिख रहा है, मुझे पैलेस दिख रहा है, मुझे 2 कैट्स दिख रहे हैं हु आर फाइटिंग, तो ये तो सब्जेक्ट ने बता दिया। थेरापिस्ट और एसएससी का काम क्या होता है, जो एसेस कर रहा है वो हर एक चीज को नोट डाउन करता है, एवरी माइन्यूट डिटेल्स को नोट डाउन करता है। फिर जैसे ही सब्जेक्ट चला जाता है, फिर लेटर ऑन ही डू द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, फिर वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है। फाइन। थीमेटिक में क्या होता है, स्टोरी लिखने के लिए बोलते हैं। द एसएससी विल यू टेल द रेस्पोंडेंट और द सब्जेक्ट टू राइट अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको एक कार्ड दिखाया जाता है, देयर आर 31 कार्ड्स। 30 कार्ड्स में कुछ पिक्चर्स होते हैं और जो लास्ट 1 कार्ड होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लैंक होता है, उस पर भी आपको स्टोरी बनानी होती है। स्टोरी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ध्यान रखता है। जैसे आपको अगर कोई कार्ड दिया गया और उससे बोला गया कि आपको बताना कि इसमें पास्ट में क्या हो रहा होगा, या अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, या आगे फ्यूचर में क्या होगा, तीनों चीज, ऑल द 3 थिंग्स यू हैव टू डिस्कस। तो ये थीमेटिक ऑफ परसेप्शन, इससे हम एनालिसिस करते हैं पर्सन की पर्सनालिटी का, द स्टोरी विच द पर्सन हैव रिटन। उसके बाद आता है नीचे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन में हम एक ब्लैंक पेज पर्सन को देते हैं और कहते हैं कि आपको एक पर्सन की फिगर ड्रॉ करनी है। जैसे भी कभी कभी रेस्पोंडेंट कहते हैं आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आपको ये बोलना है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ ड्राइंग, वॉट एवर यू, जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहते हो आप ड्रॉ करो। उस ड्राइंग का फिर इंटरप्रिटेशन होता है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, इनकम्प्लीट सेंटेंस दी जाती है, उसे कंप्लीट करना होता है। एज द पर्सन कंप्लीट द सेंटेंस इट रिवील समवन्स पर्सनैलिटी। आप जैसा लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर और पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, रोजनबिल्ड पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है। ये पर्सन की वो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को चेक करता है विच इज रिलेटेड टू द फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कितना, पर्सन को क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल है, पेशेंस लेवल कितना है, उसके लिए हम लोग ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट करते हैं। रोजनबिल्ड नाम इसमें ही है, रोजनबिल्ड इज द नेम ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, और ये टेस्ट जो है रोजनबिल्ड ने ही दिया। वो क्या करते थे, कुछ कार्टूनिस्ट पिक्चर्स लेते थे, उसमें एक पर्सन जो होता था फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता था और एक जो होता था फ्रस्ट्रेटर होता था। मतलब एक फ्रस्ट्रेट हो रहा होता था और सेकेंड पर्सन जो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा होता था। मतलब एक, द मीनिंग विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल, एक परेशान बहुत ज़्यादा होता था और दूसरा जो था उसको परेशान करता था। तो इस तरीके की कुछ पिक्चर्स हम लोग सब्जेक्ट को दिखाते थे और सब्जेक्ट से पूछते थे कि आपको इसमें फ्रस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट कौन सा लग रहा है। तो जिस तरीके से भी वो रेस्पॉन्ड करे, हाउ द वे द क्लाइंट, द वे द सब्जेक्ट रेस्पॉन्ड, वी हैव टू डू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लेटर ऑन, नॉट इन द फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के सामने ही आप एनालिसिस करने चल जाओ, वो आपको बाद में करना है। ऑल्दो यू कैन शेयर द रिजल्ट्स विद द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के साथ रिजल्ट जरूर शेयर कर सकते हो। ओके Okay, I think you all have understand now. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पर्सनालिटी मेजरमेंट टॉपिक आज पढ़ रहे थे, जिसमें 2 टेक्निक्स वी हैव डिस्कस इन डिटेल। वन इज लेफ्ट बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस यानी बिहेवियर की एनालिसिस करना, इसमें इंटरव्यू मेथड आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, बिहेवियर, इंटरव्यू के थ्रू भी आप बिहेवियर की एनालिसिस कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, ये सब आपने पढ़ा है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। बिहेवियरल रेटिंग भी कराते हैं कभी कभी बिहेवियरल एनालिसिस करने के लिए, नॉमिनेशन, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। ओके, तो ये सारे कुछ टेक्निक है बिहेवियरल एनालिसिस के। आई होप प्रोजेक्टिव तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So here we have completed almost the topic which we have started. The third criteria is
बिहेवियरल एनालिसिस। बहुत डिटेल में तो हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, बट काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। इसमें जैसे आपका आता है इंटरव्यू, आपको पता है इंटरव्यू के थ्रू कैसे बिहेवियर की एनालिसिस हो सकती है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व भी आप कर सकते हो, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। थर्ड, रेटिंग, आप रेटिंग करा सकते हो। रेटिंग यूजली नोन वन जो जो उसको करीब से जानते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रेटिंग कर पाते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। नॉमिनेशन, हम नॉमिनेशन के थ्रू भी बिहेवियर के एनालिसिस करते हैं। और फिफ्थ है सिचुएशनल स्ट्रेस, कोई ऐसा सिचुएशन में पर्सन को रखना और बेसिकली दैट सिचुएशन विल बी स्ट्रेसफुल and how the person is reacting in that stressful situation. That also tells so many things about the person's personality. So here I have done with my video of the topic. Still, if you have any doubt, you can ask me in the classroom. Okay. Thank you so much children for carefully listening and observing this video. Thank you.